عوام کے مینڈیٹ سے بننے والا لا نہیں ہے، بلکہ چند بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے بننے والا ایکٹ ہے۔ 104 سال پہلے جن پہاڑوں کو چراگاہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، میرے ویسٹڈ رائٹ ہے، میرے علاقے کے لوگوں کے رائٹ ہے، ان چراگاہوں کو تو سب کو لیز پہ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ اس سارے معاملات کے بعد کیا دے رہے ہیں؟ صنعت ملکیت دے رہے ہیں، وہ بھی چند شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط اس میں ذکر نہیں ہے، بڑی انٹرسٹڈ بات، اس کا ذکر ہونا چاہیے کیا شرائط ہیں۔ وہ چاہے رکھے، وہ نہ چاہے لوگوں سے چھین لے۔ ہمیں راجاؤں کے کاشتکار سے ابھی ہم ہٹ کے ہم اب گورنمنٹ کے تحصیلدار اور ڈی سی کے کاشتکار بننا چاہ رہے ہیں۔ تو مسودہ ابھی تیار کیا ہے، اس میں عوام کے مفاد میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ تحصیلدار ایسی اور ایک ریونیو افسر جو کرے گا بس اسی پہ چلنا ہے آگے۔ تو یہ لینڈ ریونیو لا سے ٹوٹل کنٹراڈکٹری ہے، انکنسسٹنٹ ہے، اور آئین کے تحت بھی آپ سمجھ لیں کہ ڈسکریمنیٹو لا ہے۔ اور بڑا عجیب ہے، آپ پڑھیں گے نا تو مجھے بڑی خوفناک صورتحال نظر آ رہی ہے۔ وہ شعر بار پھر یاد آ جاتا ہے کہ مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور میں ہوں قاسم بٹ۔ دوستو، گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارمز کے حوالے سے صوبائی حکومت اور سٹیک ہولڈرز کے درمیان جو ہے وہ مشاورت کا عمل جاری ہے، اور مختلف پلیٹ فارمز پہ حکومتی اکابرین اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن علاقے کے معززین، علماء کرام، سول سوسائٹی کے ساتھ مشاورت کر رہی ہے۔ اور زمینی معاملات میں وکلاء برادری کی جو رائے ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ وہ زمینی معاملات کو قانونی نقطہ نظر سے کیسے دیکھنا ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ چلیں، ہم وکلاء برادری سے رائے لیتے ہیں۔ بشارت غازی صاحب، لینڈ ریفارمز کی طرف حکومت جا رہی ہے اور سٹیک ہولڈر سے مشاورت کا سلسلہ بھی 2 ماہ سے جاری ہے۔ آپ بحیثیت قانون دان جو ہے اس لینڈ ریفارمز کے فارمولے کو یا لینڈ ریفارمز کی طرف جو حکومت جانا چاہتی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کی بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اس بہت کروشل ایشوز پہ بار کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی۔ ہم نے بھی بارہا، ہمارے جو سینئر ہیں خادم صاحب ہے، صفدر صاحب ہے، انہوں نے بہت ساری میٹنگز اس میں اٹینڈ کی۔ ایک پہلا جو سب سے بڑا ہمارا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ اپنے مینڈیٹ کے تحت نہیں کر رہی ہے، اس کے پیچھے بیوروکریسی کا پش اپ ہے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم اس میں جو خطرناک بات وہ یہ ہے کہ یہ انکنسسٹنٹ ہے وتھ لینڈ ریونیو ایکٹ، جو پریولنگ جو سب سے بڑا لا ہے۔ رول ہمیشہ لا کے ایمبیڈ میں بنتے ہیں، تو اس لینڈ ریونیو لاز کو انہوں نے نیگلیکٹ کر کے یہ رول بنا رہے ہیں۔ دوسری اس کے تحفظ ہو گئے۔ تیسرا جو سب سے اہم بات ہے کہ یہ جو سیٹلمنٹ والی بات پہ جا رہے ہیں، سیٹلمنٹ لاسٹ ٹائم یہاں پہ ہوئی 1914 اور 16 کے درمیان، ڈیورنگ دی پیریڈ آف مہاراجہ ہری سنگھ۔ اب آپ جا رہے ہیں اس سیٹلمنٹ پہ جو 1916 میں ہوئی۔ اس کے بعد جو گلگت بلتستان کے مختلف ڈسٹرکٹ ہیں ان کے سیٹلمنٹ کے ایریاز بھی مختلف ہیں اور علاقہ بھی مختلف ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے سب سے بڑی عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان تمام کو جو 1916 میں خالصہ سرکار تھے اس کو اب بدستور خالصہ سرکار کے کھاتے میں رکھا، اس کا صرف اوپر سے نومنکلیچر تبدیل کر دیا۔ پہلے اس کو خالصہ سرکار کہا جاتا تھا، اب اس کو گورنمنٹ لینڈ کہا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ جو انسیٹلڈ ایریاز تھے یا بیرون لائن جتنے بھی رقبے موجود تھے ان کو بدستور گورنمنٹ نے، عوام کے اور گورنمنٹ کے درمیان جو کنفرنٹیشن کا بنیادی ایشو تھا وہ خالصہ سرکار پر تھا۔ خالصہ سرکار میں عوام کو کہیں بھی کوئی رائٹ نہیں دیے گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ عوام کے مینڈیٹ سے بننے والا لا نہیں ہے، بلکہ چند بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے بننے والا ایکٹ ہے۔ بلتستان بار کونسل، گلگت بلتستان بار کونسل اور ڈسٹرکٹ بار سکردو کے حیثیت سے ہم اس ایکٹ کو کسی بھی طور ماننے کے قائل ہیں اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی اور ظلم کے ساتھ بلتستان کے لوگوں کو ڈپریس کرنے کے لیے لایا گیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ لا کسی بھی طرح سے ریپیل ہو۔ ایڈوکیٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا صوبائی حکومت نے ڈسٹرکٹ بار کو اور ریجنل جو بارز ہیں یا پروویژنل جو بارز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا؟ بالکل کہیں سے بھی بار سے کوئی کوارڈینیشن نہیں کی۔ اب جا کے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں آپ جائیں، وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اب وہ ہمیں سمجھانے کی کیفیت میں ہے اور ہم کتنے سمجھنا چاہتے ہیں آپ خوب جانتے ہیں۔ تو اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ منشا عوام کے منشا کے طور پہ نہیں آیا، یہ کچھ لوگوں کو نوازنے کے لیے، ان کی اپنی پروٹیکشن کے لیے آئے۔ ہم اجتماعی طور پر اس کے ساتھ خلاف ہیں۔ صحیح۔ خادم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خادم حسین ایڈوکیٹ صاحب جی، بڑی گرفت ہے قانونی باریک بینیوں کے اوپر اور بار کونسل کے ممبر بھی ہیں۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو ابھی جس طرح بشارت ایڈوکیٹ صاحب نے کہا جی کہ بار کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، تو سب سے مستند رائے کس کی ہو سکتی ہے اس ایشو پہ؟ دیکھیں سر، اصل میں مستند رائے تو جو بھی
कानून जानता हो, लैंड रेवेन्यू के लॉस को जानता हो, उन सब की मुस्तनद है। इसके अलावा भी ऐसे शख्सियात भी हैं जो बज़ाहिर वकील नहीं है, लेकिन वो वकीलों से अच्छी जो है राय रखते हैं। सही। इस जो मौजूदा प्रपोज ड्राफ्ट को जो टेंटेटिवली हमने देखा है, वो होना ये चाहिए था कि ड्राफ्ट को शेयर होता। इंतज़ामिया ये जो है बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम अपीलेट कोर्ट बार एसोसिएशन, बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पे शेयर करके कोई डिस्कशन के बाद आते। मैं ये समझता हूँ कि ये टोटली, जैसे मेरे दोस्त बशारत साहब ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, ये सेटल जो कवानीन पास हैं उसके अगेंस्ट में है। आप लैंड रेवेन्यू के तहत गवर्नमेंट सेटलमेंट होती क्या है? लोगों को सेटल करना है। ये 100 साल 1972 बिक्रिमी से आज 2076 की 78 बिक्रिमी चल रही, तो 104 साल पहले कोई बंदोबस्त हुआ है, उसमें कोई एंट्री गवर्नमेंट के नाम पे है, तो वो तो आज भी गवर्नमेंट की रही। हुआ क्या है, ज़मीनों के अक़साम बताता हूँ। ज़मीन या मलकियत है, या खालसा सरकार अंदरून लैंड है, या खालसा सरकार बैरून लैंड है, या वो वेस्ट लैंड है, चरागाह है, या वो शामिलात देह है। इनमें से ये किस पे बात कर रहे हैं? ये एक लिखा हुआ है कि जी जो गवर्नमेंट ने लीज पे दिया है वो दिया हुआ है। सारे चरागाह पे तहकीकात हुकूक काश्तराई में कहीं पर मलकियत का खाना नहीं है। वहाँ पर आज से 104 साल पहले सेटल डिस्ट्रिक्ट में उनको चरागाहों के तौर पे उसके उस देह के, उस मौजे के, उस विलेज के लोगों के हुकूक हैं। उस वक़्त हुकूक क्या हो सकते थे? या वो हैज़ा में सोख्तनी लाते थे, या बकरियां चराते थे, और अपने घरों की तामीरात के लिए लकड़ी लाते थे, फर्नीचर वगैरह के लिए। आज क्या किया, फॉरेस्ट एक्ट के नाम से लाके वो हुकूक हमसे छीने गए। हमें गैस और बिजली फ्री देना चाहिए था, क्योंकि हम तो उस वक़्त वो शिना में लई के थे, बल्ती में लशी, वो हम चरागाहों से लाते थे रात को रोशनी के लिए। हमें क्या दिया? अब वो लीज के नाम से दे के हमारी बकरियों को ख़त्म करना चाहते, वो गवर्नमेंट का रखा। भाई तुम क्या, कहाँ से 104 साल पहले जिन पहाड़ों को चरागाह डिक्लेयर किया हुआ है, मेरे वेस्टेड राइट है, मेरे इलाके के लोगों के राइट है, उन चरागाहों को तो सबको लीज पे दिया हुआ है उन्होंने। अब जो ताकतवर हलकों ने लीज पे लिया हुआ है, और जो चरागाह को हमारी वो हैसियत ख़त्म करके उधर ले जाना, एक तो ये है इसका। दूसरी बात, अब ये जो है ये अंदरून लैंड और बैरून लैंड खालसा सरकार डिफाइन ये कहाँ से करेंगे? आज से 104 साल पहले होने वाली बंदोबस्त के कागज से उस वक़्त शायद सिकरदू में 200 चूल्हे होंगे, और बहुत ही कर्टेल थी। बाकी सारे इलाके को या उन्होंने खालसा सरकार बैरून लैंड रखा होगा या अंदरून लैंड रखा होगा। अब अंदरून लैंड और बैरून लैंड को आज भी ये हमें मलकियत नहीं दे रहे हैं। अंदरून लैंड को तो मलकियत ही डिक्लेयर करना चाहिए था। जो अंदरून लैंड है वो अवाम के शामिलात देह एक्ट को इधर नाफिज करना चाहिए था। और दूसरी बात, ये मैं ये कहूँगा कि हमारे लिए लैंड रिफॉर्म से अहमियत हमारा स्टेट सब्जेक्ट रूल है। यहाँ के लोगों को अगर उस तरफ आते हैं सर, उस तरफ आते हैं, हम थोड़ा सा सफदर साहब से भी थोड़ी सी राय लें। सर, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला हैं, और हर अजला का जो जोग्राफिया है या उसका नेचर है वो कुछ अलग सा है। फॉर एग्जांपल कि सेटल एरिया अगर की बात करें तो बल्तिस्तान के 4 अजला, गिलगित ये और अस्तौर जो है ये सेटल एरिया है। हुंजा, नगर, गिजर और दियामर की अपनी अलग एक पोजीशन है। क्या ये कानून जो लैंड रिफॉर्म्स की तरफ हुकूमत जा रही है, तो ये 10 अजला पे इसका इतलाक होगा या सिर्फ 6 अजला तक ये महदूद रहेगा? बहुत शुक्रिया कासिम भट्ट साहब, बहुत अहम इशू पर आपने जो है आज हमसे राय ली। ये जो आप कह रहे हैं 2 तरह के इन्होंने उसमें जिक्र लाया, एक सेटल डिस्ट्रिक्ट है, सेटल एरियाज, और एक अनसेटल है, और बड़ा अजीब है। ये आप पढ़ेंगे ना तो मुझे बड़ी खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। इसमें जो डिफ़ाइन किया उसमें जो सेटल एरियाज आपके वो एरियाज हैं जिस तरह आपने नाम लिया, एक चंद डिस्ट्रिक्ट हैं बल्तिस्तान के और अस्तौर गिलगित है। अनसेटल एरियाज दियामर और गिजर और हुंजा नगर हैं। वहाँ के लिए तो सिंपली इनके जो रवाज के तहत उन्होंने चलना है। जहाँ मुआवजे होंगे जिस तरह पहले भी होता रहा है, पहाड़ों से लेकर दरिया तक वो उनका है। लेकिन जो सेटल एरिया हैं ये इसमें सफ़र करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप सेटल एरिया में जो इन्होंने प्रेम्बल दिया है, इसका जो एक्ट सामने आ रहा है प्रपोज, उसमें कहा है कि ये गवर्नमेंट लैंड, मालिक क्या है कि ये गवर्नमेंट लैंड है और ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आगे डिस्प्यूट कर रही है। भाई हम तो कहते हैं ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये पब्लिक लैंड है।
यहाँ ये बड़ा अहम इशू है। हमने कल मीटिंग हुई थी, हमें बुलाया था, तो वहाँ भी हमने कहा ये पब्लिक लैंड, पहले तो आप इसको उठाएं जी, आप कहें इसको गवर्नमेंट लैंड से हटाएं, ये पब्लिक लैंड है। और उसके बाद इन्होंने कुछ सेक्शंस ऐड किए जिसमें कहा जी पार्टिएबल लैंड यानी काबिल तकसीम ज़मीन, उसमें भी उन्होंने उठा के दिखाया जी चरागाहें हमारी बताई हैं, और कहा है जी जो लोग काबिज हैं उसको भी तकसीम करेंगे ज़मीनों पे। बहुत अरसे से यहाँ एक और अहम इशू है, ये जो इलीगल ऑक्यूपेंट का नाम दिया है इन्होंने, गैर कानूनी काबिजीन, किसको दिया है? हमने कल भी कहा, अब इसमें जो ज़मीनें जिनके नाम इंतकाल नहीं है, जिस पे जो सालों से 100 साल से काबिज हैं, आपको पता है बट साहब यहाँ शुरू में मालिया लिया जाता था, तो मालिया से लोग, गरीब लोग थे, बचने के लिए लोग इंतकाल नहीं कराते थे ताकि हम मालिया से बच जाएं। आज 100 साल से जो लोग काबिज हैं उनको ये कहते हैं इलीगल ऑक्यूपेंट, यानी जो लीगली एज पर रूल और लॉ जो है जो काबिज नहीं है वो इलीगल ऑक्यूपेंट हैं, और उनको वो किसी भी वक्त सेक्शन उसमें कोई 37-33 दिया हुआ है, उसमें कहा है कि कलेक्टर से कर दो समरीली, यानी पूरा ट्रायल नहीं करेगा, समरीली 15 दिन का नोटिस दे के बाज़रिया फोर्स उनको बेदखल करेगा। मैं समझता हूँ इसके बाद क्या होगा कि कलेक्टर जाके लोगों को 100 साल से जो लोग काबिज हैं, मकान बने हुए लोग जो काबिज हैं, उनको उठा के बाहर फेंकेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत खौफनाक चीज़ है। इसके साथ साथ ये जो सनत मिल्कियत देने जा रहे हैं, हम शायद हमें समझ नहीं आ रही है। मैं तो ये कहूँगा हमें राजाओं के काश्तकार से अभी हम हट के हम अब गवर्नमेंट के तहसीलदार और डीसी के काश्तकार बनने जा रहे हैं। ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ मैं। हम राजाओं के जो काश्तकार थे वहाँ से अब निकल के अब हम गवर्नमेंट के यानी एक तहसीलदार और कलेक्टर के हम काश्तकार बनने जा रहे हैं, इसलिए कि वो हमें इस सारे मामलात के बाद क्या दे रहे हैं, सनत मिल्कियत दे रहे हैं, वो भी चंद शराइत के साथ। वो शराइत इसमें जिक्र नहीं है, बड़ी इंटरेस्टेड बात, उसका जिक्र होना चाहिए क्या शराइत है, अब वो छुपाया हुआ है। अब उन शराइत के साथ एक कलेक्टर जो है, एक तहसीलदार हमें उसके साथ एग्रीमेंट करेगा, एग्रीमेंट के बाद वो हमें कहेगा जी इन एग्रीमेंट के तहत हम आपको सनत मिल्कियत दे रहे हैं, और आगे फिर सेक्शंस बड़े खतरनाक है, कह रहे हैं कि ये सनत मिल्कियत भी उन शराइत को पूरा न करने की बुनियाद पर किसी भी वक्त कैंसिल करेंगे, विड्रा करेंगे। तो मुझे ये बताओ हम कहाँ पहुंचेंगे? मैं समझता हूँ ये टोटल, इसीलिए कल हमने वहाँ कमिश्नर साहब ने बुलाया था, हम गए थे वहाँ, हमने स्ट्रेट अवे कह दिया हम इसको टोटली रिजेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने तजावीज़ मांगी, आप क्या डिमांड, हम कहते हैं आप सेटलमेंट पे जाएं। लैंड रेवेन्यू एक्ट बड़ा क्लियर है, इस हवाले से सेक्शन 17 आई थिंक है, उसमें दिया हुआ है कि हर 6 साल बाद आपने जो है इनको सेटलमेंट पे जाना है। आप सेटलमेंट कर लें, लोगों को पता चले 50 साल 100 साल से जो काबिज है उनके नाम पहले इंदराजात करें, उसके बाद जो बैरन लैंड से जो दास है उसके बाद बैठ के आप उसी एरिया के लोगों में एज पर रवाज जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमें सनत मिल्कियत नहीं चाहिए कंडीशन के साथ, उसके बाद हमें मिल्कियत चाहिए। सही, बराह रास्त मिल्कियत चाहिए, यानी शराइत आपको कबूल नहीं है। एडवोकेट साहब, बशारत साहब, आप समझते हैं कि ये काबिल अमल है, और ये हुकूमत ने ज़ाहिर है कुछ सोचा होगा, कोई खतूत उनके पास होंगे, कुछ ऐसा नक्शा होगा जिसके तहत ये अब इम्पोज करने जा रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं, तो ये मशावरत मानखेज़ होगी, क्या समझते हैं आप? मेरे ख्याल में डमी होगा ये सारा प्रोसीजर जो हमें नज़र आ रहा है, डमी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतहाई डिस्क्रिमिनेटिव फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे इम्प्लीकेशन वो इसकी इन्फोर्समेंट है। तो अगर यही चीज़ वो लेके जाएंगे चिलास, तो वहाँ तो बंदूक है, वो रेजिस्ट करेंगे, वहाँ पे नहीं हो सकता है। और आखिर में गर्दन किसके मरोड़ी जाएगी, उसी की। वो शेर बार फिर याद आ जाता है कि मकतब इश्क के दस्तूर निराले देखे, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो आखिर में फंसेंगे तो बल्तिस्तान वाले ही फंसेंगे, क्योंकि ज़मीनें भी इनके पास वास्ट बैरन लैंड की सूरत में मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे ये सारे काबिले ज़िक्र जो रकबे हैं वो चराहों की सूरत में लोगों के पास पहले से ही मौजूद है। उन सबको गवर्नमेंट जब हथियार लेगी तो क्या सूरत हाल होगी। फिर मैं आपको रिपीटेडली एक पॉइंट पे फोकस करके करवाना चाहता हूँ कि वो तमाम लॉज को हम इलीगल लॉज समझते हैं, वाइड लॉज समझते हैं, जो किसी अहम जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके एम्बिट में ना आता हो। तो ये लैंड रेवेन्यू लॉ से टोटल कंट्राडिक्टरी है, इनकंसिस्टेंट है, और आइन के तहत भी आप समझ लें कि डिस्क्रिमिनेटिव लॉ है। तो ऐसे लॉ को परमिसेबल नहीं समझा जाएगा, और न इस पर स्टेक होल्डर से कोई बाहम फ्रूटफुल कोई मीटिंग हो रही है, तो मैं इसको वाइड समझूंगा। सही सर, आप बताइएगा, आप बुजुर्ग हैं और वकालत के पेशे से काफ़ी अरसे से हैं सर, ये खालिसा सरकार पहले नाम चल रहा था, फिर गवर्नमेंट लैंड हो गई, और अब जो है बात चल रही है अवामी ज़मीन करार देने की, तो ये कोई फ़र्क वाकई ज़मीन पे भी आ रहा है या सिर्फ कागज़ में ये कहानी चलती रहेगी? शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया कुछ गुफ्तगू करने का। गुजारिश ये करूँगा कि एक कानूनी फितरत है, जिस इलाके में जो लोग पैदा होते हैं
वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो जिंदा रहे। अब हुकूमत इस बिल के ज़रिए से, इस लॉ के ज़रिए से इस कानूनी फितरत में मुदाखलत कर रहे हैं और लोगों से इस हकूक़ को छीने जा रहे हैं। तो सदियों सालों से हमारे इलाके के लोग पहाड़ों पर चराई करते थे, लकड़ियाँ लाते थे, उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए ज़िंदा रहते थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट लैंड कहेंगे, बेशक अगर गवर्नमेंट लैंड के बजाय स्टेट लैंड का है तो उस सूरत में, क्योंकि स्टेट में अवाम भी शामिल होता है, जबकि गवर्नमेंट लैंड में गवर्नमेंट में अवाम शामिल नहीं होता। वो तो सिर्फ तहसीलदार और डीसी को मालिक बना दिया। अगर वो चाहे रखे, वो ना चाहे लोगों से छीन ले। तो जो नेचुरल राइट्स है, फितरी कवानीन है, उसमें हुकूमत मुदाखलत कर रही है। आदमी राय आपसे लेंगे सर कि लैंड रिफॉर्म्स में बुनियादी तौर पे 1, 2, 3 में क्या होना चाहिए? सबसे पहले नो तोड़ रूल्स को ख़त्म करें, नो तोड़ रूल, और दूसरा जो है स्टेट सब्जेक्ट रूल को बहाल करें और लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत सेटलमेंट करें। उसके बाद ये सारी चीज़ें ये करें और ये कोई रिफॉर्म शिफार्म की मजीद ज़रूरत नहीं है। सही। कानून वकला बरादरी लैंड रिफॉर्म्स की जो मुशावरत का अमल जारी है, इस पे एक जुमले में क्या कमेंट्स करेगी? हम ये कह रहे हैं कि ये टाइम का ज़िया है और कुछ लोगों को नवाजने के लिए ये किया जा रहा है। बड़े बड़े सरमायादार आए हुए हैं, ज़मीनें खरीदी हुई है, अब उनके जो है शील्ड अप करना। सर इस पे मैं ये कहूँगा जी, इस खुदा न करे ये एक्ट आएगा जिस सूरत में अभी ये प्रपोज लेकर हैं, तो ये एक न ख़त्म होने वाला अवाम में लड़ाई और लिटिगेशन का एक सिलसिला शुरू होगा। और मैं इस पे भी मज़म्मत इस चीज़ पे भी करता हूँ, इसमें सिविल कोर्ट्स को बार किया हुआ है, यहाँ पे जुरिसडिक्शन बार की हुई है। हालांकि ये एक अनफितरी बात है, इसलिए कि ये टोटली कल को राइट्स का, लोगों के हुकूक का मामला बनेगा। जहाँ टाइटल का मामला बनेगा वहाँ अल्टीमेट जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट्स की है। इन्होंने ऑलरेडी सिविल कोर्ट्स को जुरिसडिक्शन बार किया है और वो तहसीलदार एसी और एक रेवेन्यू अफसर जो करेगा बस उसी पे चलना है आगे। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल एक मामला है। ये मज़ीद लोगों को लिटिगेशंस में, अदालतों में, मतलब उसमें लिटिगेशनों में रगड़े में रखने का और आपस में कत्ल गारती का वजह बनेगा। इसलिए कि इस पे चंद लोगों को, जो विलेज कमेटी के लोगों को, जिनको कलेक्टर जो है नॉमिनेट करेगा, उनको उनकी रिकमेंडेशन होंगी। और उसमें तो ये 100 सालों से जो लोगों के पास ज़मीनें हैं उस पे जो है आप देखेंगे, खुदा ना करे कि आपस में लड़ाई और झगड़ों का सिलसिला चल पड़ेगा। हम समझते हैं इसको हम मुस्तरद करते हैं, ये पहले सेटलमेंट पे जाएं, सेटलमेंट के बाद जाके जो बैरन लैंड्स है वहाँ के जो लोग हैं गाँव के, उन्हीं के ज़रिए तकसीमात कराएं और वहाँ के लिए आपाशी की सहूलियत मुहैया करें ताकि लोग मुस्तफ़ीद हो जाएं। ये टोटली जो ज़मीनें हैं हथियाने का एक तरीका है, इसको हम मुस्तरद करते हैं। यहाँ पे एडवोकेट शुजात साहब भी पहुंचे हैं। लास्ट कमेंट सर, लैंड रिफॉर्म्स की तरफ हुकूमत जा रही है और सरकर्दगान से बहुत सारे स्टेक होल्डर से मुशावरत का अमल जारी है। सवाल ये है कि आप बहैसियत कानूनदान इस लैंड रिफॉर्म्स को पब्लिक के मफाद में समझते हैं या कोई और बात है? पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ज़ीशान भाई और कासिम भाई। आप लोगों ने इस अहम इशू पे वकला के राय लेने के लिए, वकला के जो के ऊपर क्या वकला के वे ऑफ थिंकिंग है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे हिसाब से बीइंग लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ, ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट के नाम पे एक FCR और ये नोतोड़ रूल 1978 है ना खदीम साहब, उसको 1976 उसको दोबारा से हमारे ऊपर उसको मज़ीद सख्त करके हावी करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस कौम को लॉलीपॉप देने के सिवा कुछ भी नहीं है। इसमें अवाम के मफाद में मैंने ख़ुद, इन्होंने जो मुसविदा अभी तैयार किया है, इसमें अवाम के मफाद में मैंने कुछ नहीं देखा। सिर्फ़ और सिर्फ अफसर शाही और रियासत से एक चीज़ उठा के यहाँ के लोकल गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, एक डिस्प्यूटेड सूबा और वफाक का जंग है। अवाम के मफाद में इन्होंने कुछ नहीं किया है। सही, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के मारूफ वकला बरादरी, उनके राय आपने देखी कि लैंड रिफॉर्म बिल या एक्ट का उसको जो है ये लोग किस नज़र से देखते हैं और कानूनी तौर पे और तकनीकी तौर पे ये कितना पब्लिक के लिए सूदमंद होगा, इसके हवाले से आपने इनकी राय दी। ज़ीशान मेहदी और कासिम भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।